Hello students, a very warm good morning to one and all. My name is Varuni from PCCP Division Social Science Department, and today we are going to discuss the sample question paper which has been released by CBSE for the academic year 2023-24, right. So before starting with the paper, let us just take a review what kind of paper we are going to expect in this session. So the paper is going to consist of mainly 6 sections, right. We will have first section which will be identified as objective type section and which will have multiple choice question weighing 1 marks each. So there will be 20 questions in total. So each question will carry 1 mark. So 20 marks for the first section. The second section will carry questions which will be related to very short answer type question pertaining to 2 marks answer, right. The third section will be of medium length answers, or you can say short answer type questions which will be of 3 marks each. However, in this section you will be provided with internal choices in the question paper. The next section is going to be based on long answer type question which will carry 5 marks each, and in this section also you will have internal choices within the paper. So you can attempt any of the 2 questions asked, right. Next section is going to be related to case based questions. So you will be given case study and accordingly you have to answer the questions provided there. There might be 2 questions, there might be 3 questions, 4 marks each for each of the case study. So 12 marks will be for that case study, and the last section is going to be related to the map work, in which you will be given some questions from history and the other questions from geography. Now typically we are not going to go, or I am just going to give you a brief about the objective type questions which have been released by CBSE. When we'll move further, उस सेक्शन में हम लोग आंसर को लिखने का पैटर्न भी देखेंगे कि किस तरीके से हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस अप्रोच के साथ हमको पेपर को अटेम्प्ट करना जरूरी है, राइट. सो वी विल बी बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन. द वेरी फर्स्ट सेक्शन इज ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए, which will have MCQs, multiple choice questions. So the first question is from the chapter Nationalism in India, right, history. आपको यहाँ पर 3 options provided हैं. जैसे first statement, the provided statement is the act was passed by the Imperial Legislative Council. That means you have to identify the acts which are given below. It gave power to the government to repress any kind of political activities going on, and it empowered the government to detain the political prisoners without any trial, right. Now out of the given 4 options, what do we see? The correct answer, Rowlatt Act is going to be the correct answer. So such types of questions we can expect. Now the next question is, which place in India has an artificial lake to conserve water that dates back to the 11th century? हमको यहाँ पर एक artificial ऐसी lake को identify करना है जो कि 11th century के according date back करती हो. So out of the 4 given options you have to choose any one, right. Next question. This question is an important type of question that you can expect, which you might have to use your intellect to answer such question. The reason is this is a fact or data based question. Statistics important है, economics का ये question है. हमारे पास यहाँ पर infant mortality rate 6 states की provided है, right. Now the total is mentioned over here, and gender wise the discrimination or the gender wise division is given, like amongst male what is the ratio, amongst female what is the ratio. Now what you have to identify, आपको यहाँ पर इस डेटा जो भी दिया हुआ है इसको स्टडी करने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मॉर्टैलिटी है. तो सबसे पहले तो हमें मॉर्टैलिटी रेट पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मॉर्टैलिटी रेट. जनरली मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ, तो डेथ रेट को हम मॉर्टैलिटी रेट बोलते हैं. हम इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट से रिलेट करते हैं IMR. तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट कितनी है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट. नाउ पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग what is the highest, which state has the highest girl
child mortality rate. So accordingly, after studying the data, you have to answer the question. These types of data based questions are also going to be a part of the paper. Next we have, now again we are given with certain statements एंड आपको इन स्टेटमेंट से ये डिटरमिन करना है, मतलब माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल मेजर that can be taken to mitigate the threats which are posed by mining activities on the Buxar Tiger Reserve's ecosystem and the biodiversity. So the first option is implementing stricter regulations and monitoring mechanisms. Second, enforcing buffer zone around the protected areas. Yes. Promoting alternative livelihood and sustainable economic development in the surrounding communities. And the fourth is displacement of tiger reserve from the Buxar. Now you have to identify which of the following statements are correct or which are incorrect, right? मतलब आपको correct statements identify करना है. You can mark the odd one out also. For doing such questions, what you can do, आप दो methods अपना सकते हो. पहला, हम एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें. जो चीज हमको श्योर है कि हमने ये नहीं पढ़ा, तो हम उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दें. उससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द ऑप्शंस गिवन बिलो. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, dash was chosen as its headquarters. Now where this question has come from? ये अगर आप पावर शेयरिंग चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, तो पावर शेयरिंग चैप्टर में एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर एक इमेज प्रोवाइडेड है यूरोपियन यूनियन की. उस यूरोपियन यूनियन के इमेज के नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने किसको हेडक्वार्टर्स चूज किया था. सो व्हाट वाज चोजन एज द हेडक्वार्टर्स? Brussels, which is the capital of Belgium, was chosen as the headquarters of the European Union. Now see, an important point over here. हम अगर सिर्फ डेटा पढ़ लेंगे, उससे भी हमारा काम नहीं चल रहा. हमको साथ के साथ जो इमेजेस प्रोवाइडेड हैं, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिकल साइंस, हमको जो भी इमेजेस प्रोवाइडेड है, कई बार कैरिकेचर्स दिए हुए हैं, कई बार बहुत सारी जगह पर वर्चुअली उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो हमारे को ये नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट डज दैट पर्टिकुलर इमेज हिंट टुवर्ड्स. अगर हमें चैप्टर कंफर्म नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर हियर. तो ये पावर शेयरिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन हमको पावर शेयरिंग से ही ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजॉरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग. राइट, मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब हम श्रीलंका की बात करें. पावर शेयरिंग मॉडल, प्रो पावर शेयरिंग मॉडल, हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? बेल्जियम था. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. Majoritarianism emphasizes the dominance of the majority community. Correct है. While power sharing emphasizes sharing of powers among different groups. Groups में भी हो सकती है, levels में भी हो सकती है, organs में भी हो सकती है. It can be in any form. Majoritarianism emphasizes the need for consensus building. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. Power sharing emphasizes exclusion of minority groups. A completely false statement. Majoritarianism emphasizes the importance of accommodating minority interest. Yes, this can be an correct statement. While power sharing emphasizes need for the majority rule. Majoritarianism emphasizes the need for peaceful resolution of conflicts, while power sharing emphasizes use of force to impose the majority's will. So out of the four given option, हम किस चीज को ज्यादा एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? द फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस इट वेरी करेक्टली, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जैक्ट डिफाइन कर रहा है दोनों चीज को, कॉन्सेप्ट्स को. मेजॉरिटेरियनिज्म को भी डिफाइन कर रहा है, एट द सेम टाइम पावर शेयरिंग को भी एक्यूरेटली डिफाइन कर रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी विल हैव असर्शन रीजंस आल्सो. एज यू ऑल नो, हम काफ़ी लंबे समय से असर्शन रीजन कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं. हर टेस्ट में, हर तरह के सैम्पल पेपर्स में या हर तरह के प्रैक्टिस पेपर्स में हम लोगों को असर्शन रीजन मिलते ही मिलते हैं. राइट. सो असर्शन रीजन क्या है? दो स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, एक असर्शन है, एक रीजन है. आपको ये बताना है कि जो असर्शन है और जो रीजन प्रोवाइडेड है, क्या वो रीजन एक्यूरेट है या नहीं है. ठीक. Democracy increases not only expectations but also complaints.
ये एक स्टेटमेंट है। कंप्लेनिंग इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे पास इसी तरीके से 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर उसका रीजन है। सेकंड में है कि आर दोनों ट्रू तो हैं बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, राइट। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक्स का चैप्टर। हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ते हैं कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यू कैन सी इफ आर वांट्स क्लॉथ, ठीक है, imaginary, S has, then R should have a commodity that S wants in exchange for the cloth. In the absence of such coincidence of wants, there will be no exchange. ठीक है, ऐसा अगर होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या बोलता है कि जो चीज मैं सेल करना चाहती हूँ और जो चीज सेकंड पर्सन के पास है, दैट इज एग्जैक्ट मैच what the buyer and seller wants to exchange with one another, the commodity is exactly the same. अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को बायर दूसरा ढूंढना पड़ेगा, मेरे को दूसरा बायर ढूंढना पड़ेगा। और उस कंडीशन में उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तभी बोल सकते हैं जब दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। अगर नहीं होता तो इस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज, राइट। Now identify the situation and choose the right option that will definitely help R and S to eliminate this situation. Double coincidence of wants, exchanging commodity for commodity. ठीक है, double coincidence of wants, credit on commodity. ठीक है, double coincidence of want, loan on commodity. Double coincidence of want, money. ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमको ये चीज बतानी है कि ये प्रॉब्लम एलिमिनेट या खत्म कैसे हो सकती है। तो वो कैसे खत्म हो सकती है, उसको हम एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम यही तो पढ़ते हैं चैप्टर में कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर इतनी ज्यादा दुख हो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो कि बायर और सेलर ढूंढना पड़े और सेम कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करना पड़े, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि हम एक इंटरमीडिएट स्टेप या इंटरमीडिएट को इंट्रोड्यूस कर दें और उस इंट्रोडक्शन के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव एंड no one branch of government has absolute power. ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि हम यहाँ पर सपोजिटली हम इंडिया की बात करते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है कि सेंटर, स्टेट, लोकल। और अगर हम इधर ऑर्गन्स से बात करें तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो और किसी भी एक के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। Which of the following measures would be best to meet this goal? All power is concentrated in the hand of central government, which has the final say in all matters. नहीं, ये नहीं हो सकता। Power is divided between the central and the states or provinces, with each level having its own sphere of influence. ठीक है? Power is separated amongst the legislature, executive and judicial branches, with each branch having its own responsibilities and powers. Power is shared among different levels of government such as national, regional and local governments, with each one having some degree of autonomy. ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये सबसे ज्यादा सूटेड स्टेटमेंट है कि सबके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल पर ऑटोनॉमी होना जरूरी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। एक पिक्चर दिया हुआ है हमको और ये बताना है हमको कि ये कहाँ का इमेज है। दिस कम्स फ्रॉम द हिस्ट्री चैप्टर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द पिक्चर डिस्क्राइब्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट। Evaluate the impact of opening foreign trade on the global economy by identifying the appropriate statement amongst the following options. First, the choice of goods in the market increases. इसका मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन जब हुआ, टैक्स बैरियर्स जब रिमूव हुए या रिलैक्स होने शुरू हुए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो पहला है चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीजेस. Producers from 2 countries closely compete against each other despite the distance between their locations.
Foreign trade thus results in connecting the market or integrating the market in different countries. Quality of the product is always good. ठीक है, इसमें से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है. फोर्थ ऑप्शन में हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि द product quality always remains good. So we can say the first 3 statements are correct. If a government provides its citizens a right and means to examine the process of decision, ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट हमको ये राइट दे रही है कि हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन को हम एनालाइज कर सकें या हमको पता लग सके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको किस तरह की गवर्नमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, हम उसको किस तरह की गवर्नमेंट बोल सकते हैं. तो अगर हमारे पास सब चीज एग्जामिन प्रोसेस हमारे पास हो कि भाई ये डिसीजन जो लिया जा रहा है ये सही है या नहीं है, या हमारे पास राइट टू क्रिटिसाइज हो, दिस मूव्स टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग. नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर्स. नेशनलिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन है ये. दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. General Dyer opened firing at a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. ठीक है, इसका मतलब ये 13 अप्रैल की बात है. ठीक. Forced recruitment carried out by the British government and the economic hardship faced by the people during the First World War. First World War की बात है, इसका मतलब somewhere between 1914 से 1918 के बीच की बात है. ठीक है. The defeat of Ottoman Emperor of Turkey led to the formation of the Khilafat movement. ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का इफेक्ट है. गांधी जी लॉन्च्ड नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. ठीक है, रॉलेट एक्ट जब लॉन्च हुआ, मतलब रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब गांधी जी ने आवाज उठाई तो सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था उन्होंने. राइट. अगर हमको अब इनको सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो पहला सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट सीक्वेंस शुड बी हमारे पास फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो कैरीड आउट हुआ है. अगर आप एक सिंपल ट्रिक से भी चलो तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सीक्वेंस होना चाहिए सेकंड. हमारा जो फर्स्ट वो होना चाहिए सेकंड, है ना, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. तो अगर हम देखें तो सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वाज अ स्ट्राइक अनाउंस्ड बाय द ट्रांसपोर्ट यूनियन ड्यू टू व्हिच द लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल, milk etc. from the rural areas to the urban areas. Food became scarce in the urban area whereas the farmers were unable to sell their products. Which of the following sectors are affected due to the strike carried out by the transport union? ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन. तो ट्रांसपोर्ट यूनियन का मतलब टर्शरी सेक्टर की तो बात है ही है. ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में आता है? ट्रांसपोर्ट टर्शरी सेक्टर में आता है. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो टर्शरी सेक्टर तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा. ठीक है. दूसरा यहाँ पर बताया है कि सेलिंग की बात हो रही है, तो सेलिंग इज अगेन अ टर्शरी एक्टिविटी. राइट. तो और दूसरा लॉरीज रेफ्यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है. और कौन लोग अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे? फार्मर्स अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे थे. तो फार्मिंग comes under agriculture और agriculture is an example of primary activity. तो यहाँ पर हम प्राइमरी और टर्शरी एक्टिविटीज का फोकस रखेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अगेन हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. असर्शन रीजन नहीं है. ठीक है. प्रिंट कल्चर से क्वेश्चन है. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century as Western powers established their outpost in China. Beijing became the hub of new print culture catering to Western style schools. ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है. तो हमारे पास चार ऑप्शन है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. M gave his friend clue about a type of soil that suits the growing of cotton. Okay. Which of the following clues provided by M would be most useful? फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है ये. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ज्योग्राफी, जहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दिया हुआ है. तो अगर हम देखें
तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्लूज हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लू है, इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इट टर्न्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, ठीक है, इट इज रिच इन कंकर एंड बांगर नोड्यूल्स एंड इट इज अ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ठीक है। तो हमारे लिए इसमें क्या क्लूज हैं जो कि यूजफुल रहेंगे सॉइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, द emergence of dash is directly connected to the rise of political parties, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ क्यों हुई? भाई पॉलिटिकल पार्टीज का पर्पस क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज एक टूल है या एक जरिया है, एक मीडियम है जिससे कि नॉर्मल लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स में हमारा इंटरैक्शन पॉइंट क्या रहेगा? नॉर्मल लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो किसी के थ्रू पार्टिसिपेट करते, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और interconnection between countries through the movements of goods and services investment technology is known as, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following statements considered by a political party while forming a government, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज representatives of different caste and tribe, representatives of all religion, representatives of the elite, representatives of the non-residents of India. First and two statements are correct. Last question from this section. Miss S approached a bank nearby to avail loan for her own business. किस चैप्टर से क्वेश्चन है? मनी एंड क्रेडिट, राइट? As well as a self-help group which will be operating in her village. The bank rejected her loan application whereas the self-help group accepted the support to support her by providing the loan, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है कि जो लेडी है वो बैंक को अप्रोच करती है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को कुछ लोन की ज़रूरत है मेरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक को चाहिए होगा, ठीक है। Which of the following document is required by the bank but not required by the self-help group to approach or to approve the loan? Application for loan, agreement letter, document on collateral जरूरी होता है, डिमांड promissory note and take delivery letter, मतलब collateral सबसे important है, so that is what it is required over here. Now we come to the second part, ठीक है। अब second part में हमारे पास जो questions होंगे वो हैं कि आपको 2 marks questions हैं, 4 questions हैं, that means 8 marks, 21 से start होते हैं, section B आपका जो start होगा। अब यहाँ पर हमारे पास question है, study the map thoroughly, आपको ये मैप बहुत ध्यान से पढ़ना है। मेंशन द लैंग्वेज दैट आर डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम, ठीक है। आपको ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है। अब अगर हम बेल्जियम का मैप हमको थोड़ा बहुत याद हो या हमने बेल्जियम पावर शेयरिंग पढ़ा हो तो हमको ये पता है बेल्जियम एक ऐसा कंट्री थी जो कि 2 पार्ट्स में बटी हुई थी, वलोनिया रीजन एंड वी हैव 2 रीजन्स थे, ठीक है। तो जो दोनों रीजन्स हैं हमको उसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि कौन कौन सी, फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन, ठीक है, 2 रीजन्स हैं। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे डोमिनेंटली कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती थी। तो अगर आप फ्लेमिश रीजन में जाओगे तो वहां पर डच स्पीकर्स का नंबर ज्यादा था, ठीक। और अगर आप वलोनिया रीजन में जाओगे तो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा थी, ठीक है। मतलब what you can say, मतलब डिवीजन ऐसा नहीं है बट डिवीजन इज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कैसी थी? माइनॉरिटी थी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी कैसी थी? मेजॉरिटी थी। तो 2 भाषा बोलने वाले लोग वहां पर रहते थे। तो द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम आर डच एंड फ्रेंच। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स was not a conventional military weapon। हम जैसा कि पढ़ चुके मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कि उनके लिए क्या वेपन था जो वो लेकर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्री को कॉन्कर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कोई मिलिट्री वेपन नहीं था, वो जर्म्स लेकर गए थे। जर्म्स किसके? स्मॉल पॉक्स के। क्यों लेकर गए थे? उनको ये पता था कि ऐसी कोई जो डिजीज है वो अमेरिका में पहले स्प्रेड नहीं हुई है,
राइट। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिकन्स में इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट दैट डिजीज, तो वहां पर कॉन्कर करने के लिए उनको किसी वेपन, किसी मिलिट्री की मदद की जरूरत नहीं थी। रादर व्हाट दे वांटेड वाज कि हम इसको डिजीज से भी कॉन्कर कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पैटर्न इन विच द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड। मोस्टली 2 mark question will have 2 points. 2 pointers are enough for that. That means you have to sum up the answer in approximately 40 words. आपको 40 मैक्सिमम 50 वर्ड्स में अपने आंसर को सम अप करना जरूरी है। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, स्पेनिश कॉन्करर्स वन अमेरिका not with conventional military weapons but with germs like smallpox which spread deep into the continent before any European could reach there. ठीक है। दूसरा, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको कोई इम्यूनिटी नहीं थी इस डिजीज के अगेंस्ट में, तो वो जो बीमारी आई उस बीमारी ने एक्चुअली में कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन लेकर आई थी, लीडिंग टू कॉन्क्वेस्ट। ठीक है। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 16th century मेड इट इजी फॉर स्पेनिश टू ओवरपावर द अमेरिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. P is from Assam. He wishes to cultivate either tea or wheat. Which of the following crops of the two can he cultivate in his state according to the climatic condition? और आपको इसका आंसर देना है, you have to support your answer with reason. तो टी इन असम ज्यादा आराम से कल्टीवेट हो सकती है, 2 रीजन है उसके, एक तो सॉइल, दूसरा रीजन ये है कि वहां पे टेरेस फार्मिंग हो सकती है, हिली स्लोप्स है तो वहां पे टेरेस फार्मिंग सूटेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से टी ग्रो हो सकती है प्रोवाइडेड विद द सूटेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर बहुत रिच है, वहां पे ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा है। टी बुशेस जो हैं दे रिक्वायर अ वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट शावर्स होते हैं। मतलब बारिश का जो पैटर्न है वो ये है कि एक साथ बारिश नहीं, फ्रीक्वेंट शावर्स विच विल बी स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो ये हमारे लिए टी ग्रो करने के लिए काफी सूटेबल है। मेंशन एनी 4 रीजन दैट प्रूव दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमको 4 रीजंस देने हैं ये प्रूव करने के लिए कि इंडिया फेडरल कंट्री है। फर्स्ट, आप इसमें से कोई भी रेलेवेंट पॉइंट्स जो भी आपको याद हो जाए, वैसे याद करने की बात नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पहला पार्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्या बोलता है कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो दोनों अपने अपने सेपरेट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में वर्क करती हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे के काम में एज सच कोई इंटरफेयर नहीं करती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसने डिमार्केशन बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अपनी अपनी पावर्स क्लियरली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बाकी दोनों पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्टिस डिलीवर कर रहा है, तो जस्टिस के लिए द बॉडी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। लाइक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, और कोई भी जो डिस्प्यूट होता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में उसको रिजॉल्व करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कैसे है? राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के। ठीक है। और स्पेशल स्टेटस हमने कुछ स्टेट्स को दे रखा है ताकि वो अपनी ऑटोनॉमी अपनी पॉपुलेशन की पैटर्न के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सके। तो इसीलिए हमने कुछ स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है ताकि ये जो कंडीशन है ये यूनिटी में किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, 3 marks each, you will have 5 questions, that means 15 marks. क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको ऐसे एविडेंस देना है टू क्लेम दैट प्रिंट कल्चर हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है। वुमेन की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आया प्रिंट कल्चर का, ये आपको इस आंसर में बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हमें ये बताए कि जितने भी हमने प्रिंट कल्चर में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि वुमेन
के पास एक्सेस टू एजुकेशन या एक्सेस टू रीडिंग कब आया? जब उनकी फैमिलीज लिबरलाइज होना शुरू हुई, जब उनकी फैमिलीज थोड़ी लिबरल होना शुरू हुई थी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही चीज को जस्टिफाई करता है कि लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर, क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, तो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स दे बिगैन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉक एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल्स। जैसे ईस्ट बंगाल में राज सुंदरी देवी, a young married girl in very orthodox household, she learned to read in the secrecy of her kitchen and wrote her autobiography Amar Ziban. It was the first full-length autobiography written in the Bengali language. Bengali women, Kailash Bashini Devi, she wrote book and she highlighted experience of women about how they were imprisoned at home. Not imprisoned का मतलब जेल में नहीं बंद कर दिया, नॉट लिटरली अ क्रिमिनल टाइप ऑफ जेल, बट आप अपने फ्रीडम, अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो काइंड ऑफ एन इम्प्रिजनमेंट। द इम्प्रिजन्ड एट होम, केप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, ट्रीटेड अनजस्टली बाय देयर फैमिलीज। महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, उन्होंने बहुत ज्यादा मिजरेबल अपर कास्ट हिंदू वुमेन की लाइफ को हाईलाइट किया है और विडोज की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट थ्रो करी है। तमिल नॉवल में ये एक्सप्रेस किया गया था that women who were confined by women are obviously confined by many kind of regulations. For example, जैसे उनकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनके घर के आसपास ही रिवॉल्व करती थी। शी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ पब्लिक लाइफ। तो आउट ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट एनी 3। ठीक है, ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 मार्क क्वेश्चन, 3 रेलेवेंट पॉइंट्स आर इनफ। वर्ड लिमिट पे हम थोड़ा सा स्टिक करें क्योंकि टाइम हमारे पास 3 आवर्स ही है और हमको उतने में ही इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो हम थोड़ा टाइम का ध्यान रखेंगे। तो वो कब हो सकता है? जब हमारे पास वर्ड लिमिट स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, ना हमें कम लिखना, ना हमें बहुत ज्यादा एक्सेस में लिखना। मिस्टर आर वॉज अ रेगुलर वर्कर इन अ स्मॉल फैक्ट्री. He was not paid his wages properly and the factory did not follow the rules stated by the government. Recently, he lost his job and was found selling electrical items in a pushcart. Analyze the role of the government protecting the workers like R. क्या कर सकती है गवर्नमेंट ऐसे वर्कर्स के कंडीशंस को बचाने के लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं? सबसे पहले मिनिमम वर्किंग आवर्स और वेजेस ये को फिक्स करना है। टू हेल्प सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, गवर्नमेंट जो है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स। बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट और इन लॉज को प्रॉपर्ली एनफोर्स किया जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो करी जाए बाय द फैक्ट्री और वर्किंग आवर्स, जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस, जो भी चीजें मिलती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, दीज शुड ऑल बी प्रोवाइडेड। वेलफेयर शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, वर्कर्स के वेलफेयर का ध्यान रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 रेलेवेंट पॉइंट्स। तो पहला रेलेवेंट पॉइंट है हमारे पास कि रॉ मटेरियल सप्लाई होना। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स कि रॉ मटेरियल सप्लाई होना। रॉ मटेरियल सप्लाई होने का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स है जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए हर इंडस्ट्री में जहां जहां पर भी रॉ मटेरियल की जरूरत है। मार्केट का एक्सपेंशन होना, भाई चीजें बन रही हैं तो बिकेंगी कहाँ पर? बिकेंगी कहाँ पर? तो बिकने के लिए मार्केट एक्सपैंड होना जरूरी है। ठीक है, और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई लोगों को काम करने के लिए सेक्टर चाहिए, लोगों को काम करने के लिए अलग अलग फील्ड्स चाहिए, तो हमें ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है। हेल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर कैन इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ द फार्मर्स ऑल्सो, और उससे जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उस सेक्टर में भी एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक रोबस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आउट ऑफ द गिवन पॉइंट्स आप इनको कट शॉर्ट कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। रेजिड्यूरी लिस्ट भी होती है और आपको इनमें से ऐसे 2 सब्जेक्ट्स बताने हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इन विच लिस्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड एंड व्हाई? ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जिन लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है। तो जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं यूनियन लिस्ट में, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हैं, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री का डिफेंस यूनियन के हाथ में है। फॉरेन अफेयर्स डेफिनेटली, बैंकिंग सिस्टम, करेंसी, ये सारा सिस्टम, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, सेंसस, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। अब इन्होंने ये बोला है, सेकंड पार्ट है कि एजुकेशन कौन से सब्जेक्ट में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है टू मेक लॉज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जो कॉमन इंटरेस्ट में आती है दोनों के, स्टेट गवर्नमेंट के भी और यूनियन गवर्नमेंट के भी। नाउ अनदर क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि जीडीपी बता रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता रहा है, तीनों सेक्टर्स की कंपैरिजन है 1973-74 और 2013 और 14। आपको जो डेटा प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना है जो गिवन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, विच वॉज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74 एंड स्टेट द रीजन। अब अगर हम पीछे तरफ जाए तो 1973-74 में अगर हम देखें तो ये रेड लाइन सबसे ज्यादा ब्लर है, मतलब बहुत नैरो है इनके कंपैरिजन में, तो सेकेंडरी सेक्टर इसका आंसर होगा कि सेकेंडरी सेक्टर लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, ठीक है। इंडिया उस समय पर क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल में थी, तो सेकेंडरी सेक्टर को उतना ज्यादा बूस्ट नहीं मिला हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी इंडिया की, इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड। तो हमारे पास ऐसे लोग बहुत कम थे जो कि एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में आते हों, और सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है ये सबसे ज्यादा लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर उस समय पे था। इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013-14 एंड स्टेट द रीजन। अब अगर वापस से हम एक बार मैप की तरफ, ग्राफ की तरफ चले, तो उन्होंने बोला 2013-14 में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जीडीपी वाला सेक्टर है, तो इसका आंसर हमारे पास है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और इसका रीजन क्या है, तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है कि टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट है। बेसिक सर्विसेज, देखो क्या है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, परचेसिंग पावर जैसे जैसे लोगों की इंक्रीज होगी, तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब आप ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को अवेल करने की कोशिश करोगे, तो बेसिक सर्विसेज में डेफिनेटली एक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी सर्विसेज को क्या मिला है, एक बूस्ट मिला है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स जो हैं उनका डेवलपमेंट अपने आप हिंट करता है कि टर्शरी सेक्टर राइज करेगा ही करेगा। लोगों का इनकम लेवल राइज हुआ तो हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है, और हम क्योंकि परचेस कर सकते हैं तो इसीलिए हम क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद सके या ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे डोर स्टेप पर अवेलेबल हों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का राइज मतलब न्यू सर्विसेज का एड ऑन होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हमारे पास आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। अब जो आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करने का बहुत अच्छा तरीका, पहले बात तो ये होगा कि लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाएंगे जो कि कंटेन करते होंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स, राइट। तो आपको इम्पैक्ट एनालाइज करना है माइनिंग एक्टिविटीज का, लोकल एनवायरनमेंट पे क्या आया और हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज पर क्या आया, उनकी हेल्थ और एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हुआ है। पहला पॉइंट, द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हैजार्ड्स का मतलब डेंजर, और द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन द हेल्थ एंड माइंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट, डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स जो हैं वो इनहेल करते हैं, माइनर्स तो इनहेल कर ही रहे हैं, साथ साथ में जो लोग पल्मोनरी डिजीजेस के वल्नरेबल हैं, जो प्रोन हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, ठीक है, वो सेफ तो है नहीं वर्क करने के लिए, तो माइन रूफ्स कोलैप्स हो सकती है, बहुत बड़ा डेंजर है। इनंडेशन एंड फायर्स इन द कोल माइंस, ठीक है, जमीन का धंसना या फिर फायर कैच करना, ये भी एक कांस्टेंट थ्रेट है माइनर्स को। माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब बिकॉज इट कैन लीड टू, बहुत सारा वेस्ट जनरेशन होता है तो वो एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। फ्लोरा और फौना डिस्टर्ब होता है, वाटर सोर्सेज कॉन्टेमिनेट होते हैं, पोल्यूट होना शुरू होते हैं, और रिमूवल ऑफ मासिव अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल,
जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है, उस वो टॉप सोइल रिमूव होती है, इट कुड लीड टू इरोजन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड ऑल्सो कैन क्रिएट पोल्यूशन। ठीक है, हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम? नेपोलियन की आपको थोड़ी बढ़ाई करनी है इसमें, ठीक है, मतलब नेपोलियन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर में हम क्यों देख सकते हैं जो कि एक रैशनल और एफिशिएंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। तो सबसे पहली पॉइंट तो हमारे दिमाग में यही आता है कि नेपोलियन एक कोड लेकर आया था, वो जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, जिसको यूजुअली नेपोलियन एक कोड बोला जाता है, जिसने क्या दिया, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया, इक्वालिटी लेकर आए बिफोर द लॉ, रिमूव्ड प्रिविलेजेस विच वर बेस्ड ऑन बर्थ। जो पुराना सिस्टम जो ढर्रा चला हुआ आ रहा था उस सिस्टम को बेसिकली उसने खत्म किया है। नेपोलियनिक कोड वाज फॉलोड बाय द रीजन्स, जो भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर आते थे उन्होंने सबने नेपोलियनिक कोड को फॉलो किया है। न्यू बिजनेसमैन, आर्टिसन, पीजेंट्स एंड वर्कर्स, उन्होंने एक नई फ्रीडम को इंजॉय किया, नई तरह की फ्रीडम को उन्होंने इंजॉय करना शुरू किया। ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो थे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको रिमूव किया गया टाउन्स में से, इम्प्रूवमेंट हुआ कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल हो सके एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में, तो उन्होंने एक कॉमन करेंसी, नेशनल करेंसी को आइडेंटिफाई किया है, एक्सेप्ट किया है, ताकि बिजनेसमैन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद की रहे। वेट और मेजर के सिस्टम को यूनिफाई किया और यूनिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट करे थे सो दैट अ परफेक्ट सिस्टम कुड बी फॉलोड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर और वाला क्वेश्चन है, एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब मिलते हैं, चार बड़ी यूरोपियन पावर्स थी जो मिलती है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये मिलते हैं। एक्चुअली में सबने मिलकर नेपोलियन को हराया ही था बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में, और उसके बाद ये वियना में जब मिले तो उन्होंने एक सेटलमेंट किया, और उस सेटलमेंट को ऑस्ट्रिया के चांसलर ने होस्ट किया था, एंड द चांसलर नेम वाज ड्यूक मेटरनिक। इसकी जो रिजल्ट था वो हमारे पास आया ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था जो भी चेंजेस नेपोलियन ने करे वो सब अंडू कर दो, मतलब उन पे एक कंप्लीट थ्रो कि जो चेंजेस उसने करे थे वो सारे चेंजेस अच्छे हों तब भी वो सब अंडू कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर को स्टैब्लिश करने में, नेपोलियन एक डिक्टेटर था तो डेफिनेट सी बात है कि उसने मोनार्की तो हटाई दी होगी, तो उन्होंने क्या किया, रीस्टैब्लिश किया, बर्बन डायनेस्टी को वापस से रीस्टैब्लिश किया। फ्रांस जो है उन्होंने अपनी सारी टेरिटरीज खो दी जो भी नेपोलियन ने अनेक्स करी थी। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स को बॉर्डर्स पर सेट कर दिया था ताकि चेक रखा जा सके। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। जेनेवा जो है उसको पिडमॉन्ट एरिया दे दिया था, पिडमॉन्ट का मतलब होता है फुट हिल इन द साउथ। प्रूशिया वाज गिवन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ठीक है, 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन बनाई गई जो कि नेपोलियन ने सेट करी थी पहले, उसको छुआ भी नहीं इन लोगों ने, मतलब उसको अनटच छोड़ दिया था। ईस्ट में रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड और प्रूशिया जो है वो पार्ट ऑफ सेक्सनी मिला था उसको। 10 कंजर्वेटिव रेजिम्स जो कुछ भी 1815 में सेटअप करी गई थी वो सब ऑटोक्रेटिक थी। दे डिड नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। उन्होंने जो भी एक्टिविटीज कैरी ऑन करी वो सब क्या थी, वो सब वो थी जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट की उसकी ऑटोनॉमी को क्वेश्चन करती थी। ठीक है, एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी का ये क्वेश्चन है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या रोल प्ले करता है? बेसिकली कंपटीशन, डायनामिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हमारे पास बहुत तरह की आइडियोलॉजीज आती है, हमको चूज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एजेंडाज सामने आते हैं कि कौन क्या करना चाहता है इस सिस्टम में। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पार्टी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चेक एंड बैलेंस। भाई चेक एंड बैलेंस तो है, हमें अपनी खुद की गलतियां नहीं दिखती पर हमें सामने वाले की गलती बहुत जल्दी दिखती है, राइट? तो ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही है ताकि कोई एक पार्टी डोमिनेंट ना हो जाए। द सिस्टम ऑल्सो अलाउ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमको वो चीज प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम के थ्रू हम डाइवर्स पार्टीज जो हैं वो रीच कर सकती है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और एक सिंगल पार्टी उस चीज को हैंडल ना करे। तो इंडिया ने ये सिस्टम इसलिए अडेप्ट किया बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी दैट वी हैव इन आवर कंट्री।
जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उसके लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हर जोन से आना जरूरी है। इसका और का क्वेश्चन है कि आप एक सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन बताओ नेशनल और रीजनल पार्टी में। ठीक है, क्या डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं हम, क्या वो है डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और रीजनल पार्टी और असेस द रिक्वायरमेंट फॉर रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। ठीक, तो पहला है नेशनल पार्टी पावरफुल है इन द नेशन, नेशनल इशू से डील करती है। रीजनल पार्टी का मतलब क्या है, वो एक रीजन स्पेसिफिक है। ठीक है, और डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन रीजनल पार्टीज डिस्कस करती है। नेशनल पार्टी की जो प्रेफरेंस है वो ओवरऑल इश्यूज के ऊपर होगी, रीजनल प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं होती। उनका ऑपरेशन सिर्फ कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर स्टेट। अ पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स में उनको जीतना जरूरी है टू बी अ नेशनल पार्टी मिनिमम, और विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, ये रिक्वायरमेंट है। A party has to receive at least 6% of the total votes in the legislative election to become a regional party, और 2 सीट्स की रिक्वायरमेंट है। नेशनल पार्टी का हमारे पास एग्जांपल है बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया। रीजनल पार्टीज के हमारे पास एग्जांपल है डीएमके, एएएम, आम आदमी पार्टी, और भी पार्टी के नाम आप लिख सकते हो जो भी आपको याद हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर at a high rate of interest. As he could not pay the interest, Mr. X was forced to borrow for another loan to settle the amount for the interest borrowed to the money lender. State the consequences he may face in this situation. पहली बात तो ये situation को हम बोलते हैं debt trap, ठीक है। In this situation, क्योंकि वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, जो भी कुछ उनके पास उधार है, जो भी डेप्थ उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ टर्न होना पड़ेगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जब वो जाएंगे तो क्या क्या चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, उसमें उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। लेंडर्स जो है दे वर ऑफन पनिश्ड एंड विल बी इल ट्रीटेड। द प्राइम मोटिव ऑफ द इनफॉर्मल सोर्सेज इज टू मेक प्रॉफिट, मतलब वो तो इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, हैरेसमेंट, फिजिकल हार्म, मनी लेंडर जो भी कुछ कर रहा है वो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट वो नहीं कर पाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम होगी। इट कुड लीड टू इवन स्ट्रेस, एंजाइटी और फिजिकल इंजरीज। बोरोइंग फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड, उनको ये डेब्ट ट्रैप को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराना लोन चुकाने के लिए, पुराना लोन रीपे करने के लिए ही हैज टू टेक अनदर लोन दैट हैज टू बी पेड। तो मिस्टर एक्स जो है दे माइट एक्सपीरियंस वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसी का और का क्वेश्चन है कि जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल है, विमेन को एम्पावरमेंट दे रहे हैं। अब आपको इस आंसर को थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ सस्टेन करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वो हैं जो 15 से 20 महिलाओं का मिलकर रूरल एरियाज में सेटअप किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ा रहा है वो। ठीक है, क्यों बढ़ा रहा है, पहली बात तो विमेन अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनको उसके लिए क्रेडिट मिल जाता है, लोन मिल जाता है। ये जो ग्रुप है अगर ये रेगुलर रहता है अपनी सेविंग्स में, तो ये इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम अ फॉर्मल सेक्टर अंडर द ग्रुप नेम। ठीक है, तो बैंक से अगर वो लोन लेते हैं तो लोअर इंटरेस्ट रेट पर उनको वो चीज बहुत आराम से मिल सकती है। ठीक है, तो अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक अच्छा इनिशिएटिव है विच इज डन बाय विमेन इन द रूरल एरियाज, और इस मोटिव को फुलफिल कर पा रहे हैं। अब हमारे पास आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन में बस ये देखेंगे कि क्या बताया है हमको, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। केस दिया हुआ है, ये फर्स्ट केस जो है ये हमारे पास दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एक केस है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी सेड पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक, व्हाई। ठीक है, उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए इनर स्ट्रेंथ की जरूरत ज्यादा है। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स,
सस्टेंशिएट द स्टेटमेंट इन 20 वर्ड्स. ठीक है. ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल and that is informed with knowledge, and thus this force is called as satyagraha. What according to Gandhi is the best weapon to use to collapse the British rule in India? उन्होंने अपनी बुक जो हिंद स्वराज लिखी थी, उस हिंद स्वराज में बताया है कि ये जो सब चीजें इंडिया में हो पाई है, ये हमारे कॉपरेशन की वजह से ही हो पाई हैं. ये एम्पायर तब तक ही चल रहा है जब तक हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. अगर हम कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ये एम्पायर का रूल कोलैप्स हो जाएगा. अनदर केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि, मतलब आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन केस से रिलेटेड ही आएंगे. तो क्वेश्चन कैन बी 3. जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिल रहा है. सेकंड, डिस्पाइट बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट, महाराष्ट्र स्टिल फेसेस वाटर क्राइसिस. आपको इसका आंसर सब्सटेंशिएट करना है. तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है. ठीक. प्रपोज एनी वन सोल्यूशन टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय महाराष्ट्र. ठीक है, आपको यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम जो है वो हमको यहाँ पर बताई हुई है. मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही, यू कैन रीड इट एंड जस्ट टेक अ हिंट. जैसे हम यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, जैसे व्हाई इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम लो कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड एवरेज, सजेस्ट एनी वन मेजर टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया. हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत रैपिड है पर कैपिटा इनकम के कंपैरिजन में, और ये जो रैपिड ग्रोथ है दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, कम है, उतने के उतने यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका अलोकेशन कैसे किया जाए. मेंशन एनी वन मेजर टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम. हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. Propose any 2 measures to be taken by India in improving its HDI, Human Development Index को improve करने के लिए इंडिया क्या कर सकती है. देखो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं. इसके 2 पार्ट थे और भी, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है. ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है. अब यहाँ पर 2 प्लेसेस हमको इंडिया का मैप दिया हुआ है, 2 प्लेसेस मार्क्ड है A और B. आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन A जो कि कहाँ पर हुआ था. ठीक है, और B द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ. ठीक है, फर्स्ट का आंसर होगा कैलकटा, सेकंड का आंसर हमारे पास होगा डांडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेम पार्ट का. ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया यू हैव टू लेबल एनी 3 विथ सूटेबल सिंबल. मैप आपको एक ही दिया जाएगा, उसमें आपको सूटेबल सिंबल बनाकर और ये लोकेट करना है. जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो आप 4 में से कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो. तो टोटल आपका जो मैप वाला क्वेश्चन है दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स ईच. अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया है. देखो पहला हो गया कैलकटा, दूसरा हो गया डांडी, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था कोल माइन इन तमिलनाडु, तो नेवेली इज गोइंग टू बी द आंसर. नेक्स्ट वी हैव अ डैम बिल्ट ऑन चेनाब, रिवर चेनाब, तो हमारे पास जो डैम बिल्ट है उसका नाम है सलाल डैम. ठीक. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था अ लार्ज नेचुरल सी मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में हमारे पास जो सी पोर्ट है दैट इज नेम्ड एज विशाखापट्टनम. ठीक. और फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन था नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये आपको मार्क करना था यूपी में, तो आपने यूपी में मार्क कर दिया और नाम लिख दिया नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आएंगे. टोटल द क्वेश्चन पेपर विल हैव 37 क्वेश्चन इंक्लूडिंग द मैप क्वेश्चन. तो हमारे लिए एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस और मैप क्वेश्चन से तो डेफिनेटली शॉर्ट है, तो ये तो हमारे बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. बाकी क्वेश्चंस में हाँ हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और दूसरी चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा भी ना लिखें, बहुत ज़्यादा कम भी ना लिखें. आंसर प्रेफरेबली यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. I hope this video will be helpful for you.